بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں اللہ وسایہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج ہم بات کریں گے بلڈ پریشر کے بارے میں کہ بلڈ پریشر کیوں بڑھتا ہے، بلڈ پریشر کی کیا علامات ہیں، ایک نارمل صحت مند انسان کا کتنا بلڈ پریشر ہونا چاہیے، تو اس بارے میں آج ہم گفتگو کریں گے۔ اگر نئے ہیں یوٹیوب چینل پر تو چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک اور شیئر کریں۔ آئے ہم سنتے ہیں ڈاکٹر شرافت صاحب کا بیان بلڈ پریشر کے بارے میں۔ سب سے پہلے یہ جانو بلڈ پریشر تیز ہوتا کیوں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان انسان کے بدن میں ایسے گردش کرتا ہے جیسے خون میں، جیسے انسان کے بدن میں نالیوں میں خون۔ یہ جس کو آپ لوگ بلڈ پریشر کہتے ہیں نا، یہ حقیقت میں غصہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ اور غصہ کس کی وجہ سے آتا ہے؟ غصہ آتا ہے شیطان کی وجہ سے۔ اچھا، کبھی نہ آپ بلڈ پریشر اس کو میڈیکلی کہتے ہیں ہائپر ٹینشن، ٹھیک ہے؟ اور یہ جو غصہ ہے، سچ بتاؤ ہم کہتے نہیں مینوں ٹینشن نہ دے۔ اچھا، بلڈ پریشر میں کیا ہوتا ہے؟ دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے۔ غصے میں کیا ہوتا ہے؟ دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے۔ بلڈ پریشر میں کیا ہوتا ہے؟ خون جو خون کی نالیوں پہ دباؤ ڈال رہا ہوتا ہے۔ بلڈ کہتے ہیں خون کو، پریشر کہتے ہیں دباؤ کو۔ اور جب غصہ آتا ہے تب کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ وہی ہو رہا ہوتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، غصے میں جس طرح آپ کے اندر ایک ہیجانی کیفیت آ جاتی ہے، اسی طرح بلڈ پریشر میں بھی آپ کے جسم میں ایک پیلپیٹیشن آ جاتی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، غصے کا اور بلڈ پریشر کا جو علاج غصے کا نا، وہ علاج بلڈ پریشر کا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دو لوگوں کو دیکھا تھا تو آپ نے کیا فرمایا؟ اگر یہ صرف کیا پڑھیں؟ تاؤز، تو یہ تاؤز کیا ہے؟ ساؤنڈ۔ یہ کیا ہے؟ آواز۔ اگر جس کو بلڈ پریشر ہے میرے محترم بھائیوں، وہ اچھی اچھی باتیں پڑھنا شروع کر دے، اچھی اچھی باتیں بولنا شروع کر دے۔ اور اس کائنات میں فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب سے بڑھ کے کوئی اچھی چیز ہے؟ تو اگر بلڈ پریشر بڑھے تو بھائی صاحب سب سے پہلے وضو کرو اور وضو کر کے قرآن کی تلاوت شروع کرو، اور دیکھو فرق پڑتا ہے کہ نہیں پڑتا۔ اس کے بعد لمبا سجدہ شروع کر دو۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی بھی پرابلم آتی تھی، آپ کہاں جاتے تھے؟ مصلی پہ۔ اور ہم کہاں جاتے ہیں؟ ڈاکٹر کے پاس۔ فرق ہے کہ نہیں ہے؟ تو میرے محترم بھائیوں، سجدے کی طرف جاؤ۔ اس کے بعد اگر بلڈ پریشر بڑھ جائے، آسان سا نسخہ آپ کو بتانے لگا ہوں۔ زیرہ، سونف، سبز الائچی اور پودینہ، اس کا قہوہ بنا کے پیو۔ آدھی چائے کی چمچ زیرہ، آدھی چائے کی چمچ سونف، 2-3 سبز الائچیاں اور 10 سے 12 پتے پودینے کے، 2 کپ پانی میں ڈال کے اس کو اتنا پکاؤ اتنا پکاؤ اتنا پکاؤ، 1 کپ رہ جائے۔ اگر شوگر نہیں ہے اس میں گڑ ملا لو۔ تو میرے محترم بھائیوں، اس کو ٹھنڈا کر کے پی سکتے ہو، گرم کر کے پی سکتے ہو، بہترین بلڈ پریشر کا علاج ہے۔ اس کے ساتھ میرے محترم بھائیوں، جتنی ٹھنڈی چیزیں ہیں، مثلا گاجر کا جوس صبح دوپہر شام پیو، بلڈ پریشر کا بہترین علاج ہے۔ انار کا جوس صبح دوپہر شام پیو، بہترین علاج ہے۔ گنے کا رس پیو صبح دوپہر شام، بہترین علاج ہے۔ موسمی کا جوس پیو، انار کا جوس پیو۔ آج کل میرے محترم بھائیوں ناریل پورے کا پورا آیا، ناریل کا پہلے پانی نکالو، اس کے چھوٹے چھوٹے پیس کرو، گاجر کی طرح اس کا جوس نکالو، اس کے جوس کو اور پانی کو مکس کرو، یہ بہترین بلڈ پریشر کا علاج ہے۔ اس کے ساتھ میرے محترم بھائیوں، بلڈ پریشر کا بہترین علاج 10 سے 12 قسم کی سلاد لو۔ گاجر لو، مولی لو، شلجم لو، کھیرا لو، پیاز لو، ٹماٹر لو، بند گوبھی لو، سلاد کے پتے لو، لال مولی لو، چقندر لو، اس میں سبز دھنیا کے پتے لو، پودینے کے پتے لو، لیمن لو، اور اس میں شملہ مرچ لو۔ اس کو چھوٹا چھوٹا کاٹ لو۔ ہر کھانے کے ساتھ میرے محترم بھائیوں آدھا کلو سلاد کا باؤل بناؤ، اس کو صبح بھی کھاؤ دوپہر بھی کھاؤ، بہترین بلڈ پریشر کا علاج ہے۔ اگر آپ اس کو سائنٹیفکلی جاننا چاہتے ہو میں سائنٹیفکلی بتا سکتا ہوں، اس کو میڈیکلی جاننا چاہتے ہو میڈیکلی بتا سکتا ہوں۔ آگ جہاں ہوگی، جہاں آگ ہوگی اس کی ضد ہمیشہ مٹی ہے۔ جو چیز مٹی سے نکلتی ہے میرے محترم بھائیوں، وہ آگ کی ضد ہے، وہ آگ کی۔ اور نالیوں میں جو شیطان ہے، نالیوں میں کون ہے؟ شیطان آگ ہے۔ اور آگ کو ہمیشہ کس سے ٹھنڈا کرنا چاہیے؟ پانی سے۔ یہ جتنی چیزیں سبزیاں نا، ان میں بنڈل آف واٹر ہے، پانی ہے، یہ لے کے دیکھو انشاءاللہ بلڈ پریشر آپ کا نارمل ہو جائے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت۔ ہائی بلڈ پریشر کو ہائپر ٹینشن بھی کہا جاتا ہے۔ ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے شریانوں کے خلاف خون کا دباؤ بڑھ جاتا ہے، جس کی وجہ سے خون کی نالیوں کو نقصان پہنچتا ہے۔ ہائی بلڈ پریشر کا شمار عام بیماریوں میں کیا جاتا ہے،
क्योंकि आलमी इदारा सेहत के मुताबिक इस वक्त दुनिया में इस मर्ज से मुतासरा अफराद की तादाद 1,28,00,000,000 है, जबकि DW न्यूज़ के मुताबिक पाकिस्तान में हर 20 में से 9वां शख्स हाई ब्लड प्रेशर का शिकार है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक कई अफराद में ये मर्ज खामोश कातिल भी साबित होता है, क्योंकि इसकी अलामात लंबे अरसे तक जाहिर नहीं होती। इसके अलावा हाइपरटेंशन की वजह से स्ट्रोक्स, दिल की बीमारियों और गर्दों के मसाइल के खतरात भी बढ़ जाते हैं। अमूमी तौर पर नॉर्मल ब्लड प्रेशर 80 से 120 मिलीमीटर मर्क्यूरी होना चाहिए। इसके बरक्स हाई ब्लड प्रेशर की वजह से ब्लड प्रेशर नॉर्मल सतह से बढ़ जाता है। हाइपरटेंशन लाहिक होने की सूरत में बहुत ज़्यादा एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि एहतियात न करने की वजह से मज़ीद तिब्बी मसाइल के खतरात बढ़ जाते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट्स। हाई ब्लड प्रेशर की अलामात। हाई ब्लड प्रेशर की वजूहात। हाई ब्लड प्रेशर का इलाज। मुतवाज़िन ग़िज़ाएँ। नमक के इस्तेमाल में कमी। सिगरेट नोशी से गुरेज। जिस्मानी वज़न में कमी। बाकायदगी से वर्जिश। अल्कोहल के इस्तेमाल से गुरेज। ज़हनी दबाव में कमी। हाई ब्लड प्रेशर की अलामात। हाई ब्लड प्रेशर की अलामात मुख्तलिफ होती हैं, ताहम ज़्यादातर अफराद को मंदरजा ज़ैल अलामात का सामना करना पड़ सकता है। सर में शदीद दर्द, नाक से खून बहना, कन्फ्यूजन, थकावट, आँखों के मसाइल, सीने में दर्द, सांस लेने में मुश्किलात, दिल की धड़कन का बेतरतीब हो जाना, पेशाब में खून आना, गुनूदगी। हाई ब्लड प्रेशर की वजूहात। हाई ब्लड प्रेशर की मुख्तलिफ अलामात मुंदरजा ज़ैल वजूहात की वजह से लाहिक हो सकती है। कुछ लोगों को जीनियाती मसाइल की वजह से इस मर्ज का सामना करना पड़ सकता है। जीनियाती मसाइल वालिदैन से बच्चों में मुंतकिल होते हैं। 65 साल से ज़ायद उम्र के अफराद में हाइपरटेंशन के खतरात बढ़ जाते हैं। किसी खास नस्ल के अफराद में भी इस मर्ज का खतरा ज़्यादा हो सकता है। इस मर्ज की वजूहात में मोटापे भी शामिल है। दिन में 1 या 2 मरतबा से ज़्यादा अल्कोहल इस्तेमाल करने से भी इस मर्ज का खतरा बढ़ सकता है। जिस्मानी सरगर्मियों में हिस्सा न लेने की वजह से भी हाई ब्लड प्रेशर लाहिक हो सकता है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम और ज़ियाबितस भी इस मर्ज के खतरात बढ़ा देते हैं। दिन भर में 1.5 ग्राम से ज़ायद सोडियम इस्तेमाल करने से भी हाइपरटेंशन लाहिक हो सकता है। हाई ब्लड प्रेशर का इलाज। मुंदरजा ज़ैल घरेलू इलाज की मदद से हाई ब्लड प्रेशर की अलामात को कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है, जो कि निहायत कारगर साबित होती है। मुतवाज़िन ग़िज़ाएँ। ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखने में मुतवाज़िन ग़िज़ाएँ बहुत अहम किरदार अदा करती हैं। ऐसी ग़िज़ाएँ जो फाइबर, पोटाशियम और मैग्नीशियम से भरपूर हों, वो हाइपरटेंशन को कम करने में मुफीद साबित हो सकती है। फलों, सब्जियों और कम कोलेस्ट्रॉल वाली ग़िज़ाओं को अपनी खुराक में शामिल करके हाई ब्लड प्रेशर की सतह 11 मिलीमीटर मर्क्यूरी तक कम की जा सकती है। ब्लड प्रेशर नॉर्मल रखने के लिए एक सेहतमंद डाइट प्लान निहायत ज़रूरी तस्वुर किया जाता है। नमक के इस्तेमाल में कमी। रोज़मर्रा की ग़िज़ाओं में नमक की मिक़दार को कम करना ब्लड प्रेशर की सतह को मुतवाज़िन रखने के लिए निहायत ज़रूरी समझा जाता है। नमक को ज़्यादा मिक़दार में इस्तेमाल करने से जिस्म में ऐसे मरकबात जमा होना शुरू हो जाते हैं, जिनकी वजह से ब्लड प्रेशर तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाता है। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के मुताबिक किसी सूरत भी एक दिन में 1500 से 2300 मिलीग्राम से ज़्यादा नमक इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। खाने में नमक की मिक़दार कम करने के लिए पके हुए खाने में मज़ीद नमक शामिल करने से गुरेज करें। नमक के बजाय खाने का जायका बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ मसाले और जड़ी बूटियाँ इस्तेमाल की जा सकती हैं। जंक फूड भी इस्तेमाल करने से गुरेज करें, क्योंकि इसमें नमक की मिक़दार बहुत ज़्यादा होती है। सिगरेट नोशी से गुरेज। सिगरेट नोशी के बाद कुछ वक्त के लिए ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। अगर ज़्यादा तंबाकू नोशी की जाए तो ब्लड प्रेशर ज़्यादा वक्त तक हाई रह सकता है। ऐसे अफराद जो मुस्तकिल तौर पर सिगरेट नोशी करते हों, इनमें हार्ट अटैक और स्ट्रोक के खतरात बढ़ जाते हैं। इसके अलावा सिगरेट का धुआं भी हाई ब्लड प्रेशर और दिल के अमराज का खतरा बढ़ा देता है। इसलिए ऐसे अफराद जो सिगरेट नोशी के आदी हों, इनसे दूर रहें। तंबाकू नोशी की आदत तर्क करने से न सिर्फ ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है, बल्कि कई और बीमारियों के खतरात भी कम हो जाते हैं। जिस्मानी वज़न में कमी। जिस्म पर इजाफी चर्बी जमा होने या वज़न बढ़ने की वजह से हाई ब्लड प्रेशर के खतरात भी बढ़ जाते हैं। इसके अलावा मोटापे का शिकार अफराद की सांसें सोने के दौरान बेतरतीब भी हो सकती हैं। हाइपरटेंशन को कंट्रोल करने का सबसे मुअस्सर ज़रिया वज़न में कमी लाना है। अगर अब भी मोटापे के साथ हाई ब्लड प्रेशर का शिकार हैं, तो आपको फौरी तौर पर इससे छुटकारा पाना होगा।
बाकायदगी से वर्जिश। हाइपरटेंशन के शिकार मरीजों के लिए यह निहायत ज़रूरी है कि वो दिन में भर में कम अज़ कम 30 मिनट्स वर्जिश के लिए मुख्तस करें। इसके साथ साथ हफ्ते में कम अज़ कम 150 मिनट्स वर्जिश के लिए मुख्तस होने चाहिए। हर रोज़ बाकायदगी के साथ वर्जिश करने से आप हाई ब्लड प्रेशर में 5 से 8 मिलीमीटर मर्क्यूरी तक कमी ला सकते हैं। बाकायदगी के साथ वर्जिश करना निहायत ज़रूरी है, क्योंकि वर्जिश न करने की सूरत में ब्लड प्रेशर में इजाफा हो सकता है। स्विमिंग, जॉगिंग, डांसिंग और साइकिलिंग हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए निहायत मुफीद वर्जिशें साबित हो सकती हैं। अल्कोहल के इस्तेमाल से गुरेज। अल्कोहल इस्तेमाल करने से न सिर्फ ब्लड प्रेशर में इजाफा होता है, बल्कि कई और तिब्बी मसाइल के खतरात भी बढ़ जाते हैं। इसके अलावा अल्कोहल के इस्तेमाल से अद्वियात के असरात भी कम हो जाते हैं। हाई ब्लड प्रेशर से छुटकारा पाने के लिए आपको अल्कोहल का इस्तेमाल तर्क करना होगा। जहनी दबाव में कमी। जहनी दबाव की वजह से हाई ब्लड प्रेशर के खतरात भी बढ़ जाते हैं, इसलिए ज़रूरी है अपनी मसरूफियत में से कुछ वक्त निकालकर जहनी दबाव में कमी लाने की कोशिश की जाए। इन अनासिर को जानने की कोशिश करें जिनकी वजह से आपको जहनी दबाव का सामना करना पड़ता है। मुंदरजा झैल अनासिर से छुटकारा पाने की कोशिश करें। इन अनासिर से छुटकारा पाने के लिए आप योगा समेत मुख्तलिफ वर्जिशें कर सकते हैं। ये घरेलू इलाज हाई ब्लड प्रेशर को कम करने में निहायत अहम किरदार अदा करते हैं। अगर इन इलाज की मदद से आप में हाई ब्लड प्रेशर की अलामात में कमी ना आए तो आपको किसी माहिर अमराज से राब्ता करना होगा।